مانچسٹر آف پاکستان آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 403 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اسموک کے اثرات کی موجودگی سے حد نگاہ کم ہونے لگی۔ ماہرین صحت نے احتیاط کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مانچسٹر آف پاکستان آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 403 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ہے پاکستان کا آلودہ ترین شہر فیصل آباد، جہاں فضائی آلودگی کے باعث شہر میں جزوی سموک کا راج ہے۔ ایئر ویژول کے مطابق صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 424 پوائنٹ ریکارڈ ہوا، جو کہ دوپہر میں کم ہو کر 403 پر آ گیا، جبکہ صنعتی علاقوں میں حد نگاہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سموک سے بچے بھی متاثر ہو کر والدین کے ہمراہ ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ماہر امراض ڈاکٹر اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ سانس، کھانسی اور امراض چشم کے مریض بچے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، جبکہ گرم مشروبات، سوپ اور یخنی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور پروٹین کے حصول کے لیے انڈوں کا استعمال کریں۔ قوت مدافعت بہتر ہونے سے بیماری کا اثر کم ہوگا۔ اسموک جو ہے بیسیکلی یہ فضائی آلودگی ہے، تو یہ کمبینیشن ہے ڈسٹ اور فوگ کا۔ تو بچے اور جو بزرگ حضرات ہیں یہ زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اس میں سانس لینے کی مشکل اور کھانسی کے ساتھ زیادہ تر مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بچوں اور بزرگوں کے اندر قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے یہ ہے۔ تو اس میں احتیاطی تدابیر جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد ناک کو ڈھانپ کے رکھا جائے اور گرم مشروبات کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ پروٹینز بوائل ایگ اور کہوہ، سوپ، یخنی، یہ چیزیں زیادہ استعمال کی جائیں تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوائیں چلنے اور بارش کا ابھی کوئی امکان نہیں، جس سے سموگ میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ڈینگی کے وارڈ جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں فیصل آباد میں مزید 3 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 357 ہو گئی ہے۔ ڈینگی کے وارڈ جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں فیصل آباد میں مزید 3 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 357 ہو گئی۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے۔ 10 ایکوکارڈیوگرافی مشینوں میں سے 8 خراب نکلی۔ اسپتال انتظامیہ ایکو کے لیے 2 سے 3 ماہ کا وقت دینے لگی۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے سب اچھا کی رپورٹ دی جانے لگی۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال ذرائع کے مطابق 8 ایکو کارڈیوگرافی مشین خراب ہے۔ ہسپتال میں ایکو کارڈیوگرافی کروانے آئے مریضوں کو ماہ جنوری 2022 کا وقت دیا جا رہا ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے 2 یا 3 ماہ قبل ایکو کارڈیوگرافی کا وقت دیا گیا تھا، اب کہتے ہیں مشینیں خراب ہیں، صبح سے باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ 1.5-2 مہینے یہ ملا تھا، ایک اب ہو گیا، قائم ہوگا، تب آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مشینیں خراب تھی، اس کی اب صحیح ہوگی میرا خیال۔ اب باری دیکھیں کب آ رہی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں تقریباً یہاں۔ 3 مہینے تو بعد اج نمبر آیا تو سویر دا بیٹھا تو باقی اور سارے چلے گئے، میں بیٹھا اتنے، وہ آواز ہی نہیں اندر پئی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ سب اچھا کی رپورٹ دینے لگی۔ ایم ایس ڈاکٹر ظفر عباس خان بلوچ کا کہنا ہے ایکو کارڈیوگرافی کی مشینیں خراب نہیں ہیں، مریضوں کا رش بہت زیادہ ہے، پھر بھی روزانہ 250 سے 275 مریضوں کی ایکو کارڈیوگرافی کر رہے ہیں۔ ہماری مشینیں ساری ٹھیک ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرانک کا مال ہے، اس میں کوئی ایک آدھ کسی مشین کی اپلیکیشن خراب ہو سکتی ہے اور اس کے ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے سارے جو پارٹس ہیں وہ امپورٹڈ آئٹمز ہیں موسٹلی، اور پھر ایک کاسٹلی آئٹمز ہیں، تو ایک پروسیس ہوتا ہے پرچیز کا، اس میں ہمیں گزر کے آنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یعنی ہمارے یہ کچھ مشینیں بیک اپ پہ ہیں، تو ہم جو ڈیلی ہماری آؤٹ پٹ ہے وہ 250 سے لے کے 275 تک ہے، اور ہم وہ ڈیلی اپنی جو اس کی آؤٹ پٹ پوری کر رہے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے شعبہ بیرونی مریضوں میں روزانہ تقریباً 70 سے 100 مریضوں کو ایکو کارڈیوگرافی تجویز کر کے دی جا رہی ہے۔ ایکو کارڈیوگرافی کا بروقت ٹائم نہ ملنے کے سبب غریب اور مستحق مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اب مریضوں کو پرائیویٹ اسپتال نہیں جانا پڑے گا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال ٹوبہ کو جدید لیپروسکوپی مشین مل گئی۔ مریضوں کا جدید مشین سے کٹ کیے بغیر فری آپریشن ہوگا۔ ضلع ٹوبہ کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں علاج معالجہ کی جدید سہولیات فراہم کرنے کا سفر جاری ہے۔ بڑے سرکاری ہسپتال میں لیپروسکوپی مشین فراہم کر دی گئی۔ مریضوں کو آپریشن اب کٹ کے بغیر جدید طریقہ علاج سے ہوگا۔
लेप्रोस्कोपी मशीन ऑपरेशन थिएटर में फॉल कर दी गई है। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर शबाब आलम का कहना है कि सीनियर सर्जन ऑपरेशन करेंगे। लेप्रोस्कोपी मशीन की फराहमी से मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। ये लेप्रोस्कोपिक मशीन बहुत कॉस्टली है, ये आम तो बहुत कम ही लोग करते हैं और अगर प्राइवेटली आप करवाएं तो उस पर बहुत खर्चा आता है। तो यहाँ पे पड़ी थी और अनइंस्टॉल थी। जब मैंने आके चार्ज लिया तो मैंने आते साथ ही फर्स्ट प्रायोरिटी में थी कि मैं इसको इंस्टॉल करवाऊँ, और जो लोग प्राइवेटली लाखों रुपया खर्च करके इसका ऑपरेशन करवा रहे थे, अब DHQ टोबा के अंदर वो फ्री करवा सकेंगे। जनरल सर्जरी के जितने भी लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस हैं वो भी यहाँ पे फ्री फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल। लेप्रोस्कोपी मशीन की फराहमी से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल में ही मुफ्त इलाज होगा। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया। जनावाला की हुसैन शुगर मिल ने पंजाब में सबसे पहले गन्ने की खरीदारी और क्रशिंग शुरू की। किसानों ने बरवक्त काम शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर से शुगर मिलें चलाने की हिदायत की गई थी, जिस पर जनावाला की हुसैन शुगर मिल ने सुबह भर में सबसे पहले क्रशिंग शुरू कर दी। इफ्तिताही तकरीब में फैक्ट्री इंतजामिया और किसानों ने शिरकत की। काश्तकारों ने बरवक्त काम शुरू होने और गन्ने की खरीदारी पर खुशी का इजहार किया। कमाद से खाली होने वाले खेतों में गंदम की काश्त मुमकिन हो सकेगी, जिससे पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत की जानिब से गन्ने के फी मन कीमत 225 रुपए मुकर्रर की गई है। गंदम उगाओ मुहिम को कामयाब बनाना वक्त की अहम जरूरत है। झंग समेत पंजाब भर में फी एकड़ 3 मन गंदम का इजाफा ना हुआ तो मुस्तकबिल में किल्लत का खदशा पैदा हो सकता है। महकमा ज़राअत झंग ने फूड सिक्योरिटी मसाइल की पेशगोई कर दी। गंदम की कीमतों और तलब में इजाफे के बाद महकमा ज़राअत ने फूड सिक्योरिटी मसाइल की पेशगोई कर दी। 22 करोड़ से ज़ायद जो अवाम है उनको खाने के लिए रोटी जो हर रोज़ चाहिए, इसके लिए इतनी गंदम हम बाहर से नहीं मंगवा सकते और इसके लिए जितना ज़र मुबादला दरकार होगा वो हमें मैसर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मुआशी बहरान होगा। रूस जैसा मुल्क जो है वो इस तरह के बहरान का मुकाबला नहीं कर सका। फूड सिक्योरिटी जो है उसको के हल के लिए ज़रूरी है कि काश्तकार जो हैं वो कम अज़ कम गंदम जो है इस लेवल तक उगाएं कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार जो है इस साल वो 28 मन की औसत से 35 या 36 मन फ़ी एकड़ आए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आमद। 425 मिलियन रुपए की लागत से तामीरशुदा 2 हॉस्टल्स का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में चौधरी सरवर का कहना था कि तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। GC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में तालिबात को रहायशी सहूलियात की फराहमी के लिए 425 मिलियन रुपए की लागत से 2 हॉस्टल तामीर किए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सैयदा हिफ्सा और सैयदा मैमूना हॉल का इफ्तिताह किया। ताही तकरीब में वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद कमाल, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर नदीम सुहेल, डीन सोशल साइंसेज डॉक्टर आसिम महमूद, HOD शोबा मास कम्युनिकेशन डॉक्टर अशरफ समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी सरवर ने कहा कि मौजूदा दौर में लड़कियां तालीमी मैदान में लड़कों से आगे हैं। चांसलर बनने के बाद यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किए। जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला था वो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में कि हर यूनिवर्सिटी में तो नहीं लेकिन कम से कम 14-15 यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिंग वाइस चांसलर लगे हुए थे और उसके बाद फिर एक्टिंग ट्रेजर थे, एक्टिंग कंट्रोलर एग्जामिनेशन थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे नंबर ऑफ स्टाफ थे। तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि मैं परमानेंट जो है हमारा जो स्टाफ है अगर वो काम पे आते हैं तो ये सोच के ना आए कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, उनको सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो पहला काम ये था कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में परमानेंट चांसलर लगाएं। तकरीब से खिताब में वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने कहा कि GC यूनिवर्सिटी कारकर्दगी के एतबार से पंजाब में पहले जबकि मुल्क भर की जामियात में दूसरे नंबर पर है। यूनिवर्सिटी में 5000 तालिबात की रहाइश के लिए 10 हॉस्टल्स मौजूद हैं। 2.5 सालों में हमने
3 انڈومنٹ فنڈز کریٹ کیے ہیں. ان میں سے ایک جو پینشن فنڈ ہے، جو کہ ہمارے وہ اساتذہ کرام یا وہ امپلائیز جب ریٹائر ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پینشن کا آتا ہے، تو اس میں اس وقت اکثر 1.1 بلین ہم نے کنٹریبیوٹ کر دیا ہے. تو ہمارے جو اساتذہ کرام زیادہ لوگ ریٹائر ہوں گے وہ 2030 کے بعد ہوں گے، اور اگر ہم اس کو اسی طرح چلاتے رہے تو 2030 تک ہمارے پاس کوئی 20 بلین کے قریب اس فنڈ میں ہوگا. چودھری محمد سرور نے تعلیمی میدان میں جی سی یونیورسٹی کی کارکردگی کو سراہا اور حکومتی سطح پر ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا اعلان کیا. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد. چناب کلب فیصل آباد کے الیکشن کے سلسلے میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. سیکرٹری کے عہدے کے لیے 2 امیدواروں حبیب اقبال اور ہارون رفیق چودھری کے مابین 1-1 مقابلہ ہے، جبکہ ایگزیکٹو کی 4 نشستوں کے لیے 5 امیدوار مد مقابل ہیں. بات کرتے ہیں بیورو چیف ظفر ڈوگر صاحب سے، جو اس وقت چناب کلب کے سامنے موجود ہیں. جی ظفر ڈوگر صاحب. الیکشن کے سلسلے میں پولنگ جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 11 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا. سیکرٹری کے عہدے کے لیے 2 امیدواروں ہارون رفیق چودھری اور حبیب اقبال کے درمیان مقابلہ ہے. 1-1 اور بہت دلچسپ مقابلہ ہے. دونوں طرف بڑے بڑے گروپس ہیں. کچھ بھی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگوں سے جب مل رہے ہیں تو کچھ ہارون کے حمایتی ہیں اور کچھ حبیب اقبال کے. کچھ بھی اس وقت کہنا جب تک کہ رزلٹ آ نہیں جاتا بہت مشکل ہوگا. یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ایگزیکٹو کی 4 نشستوں کے لیے 5 امیدوار میدان میں ہیں. ڈاکٹر عارف ہیں، ڈاکٹر رانا داؤد ہیں، بلال ظفر ہیں، خواجہ ارمغان سکہ ہیں اور اس کے علاوہ عزت علی امیدوار ہیں. یہ 5 ہیں، ان میں سے 4 امیدوار الیکٹ ہوں گے اور ایک جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس وقت دیکھا جائے تو دور دور سے جہاں جہاں بھی چناب کلب کے ممبرز رہتے ہیں، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ صنعت کار ہوں یا کسی بھی شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہو، وہ تمام لوگ جو چناب کلب کے ممبرز ہیں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بڑی بڑی دور سے ہم بہت سارے بیوروکریٹس کو ملے ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. اسی طرح یہ چونکہ دونوں سرمایہ دار ہیں، دونوں بزنس مین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں سیکرٹری کے عہدے کے جو امیدوار ہیں، تو اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک گروپ کو چنیوٹی شیخ برادری ان کی سپورٹ کر رہی ہے، تو دوسری طرف دوسری شیخ برادری اور دوسرے کاروباری لوگ ہیں. حبیب اقبال کے حمایتی بھی بہت سارے مختلف گروپس ہیں اور ہارون رفیق چودھری کے بھی بہت سارے حمایتی نظر آئے. تو قبل از وقت کچھ کہنا مشکل ہے. 11 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا، تو رزلٹ اس لیے بہت تاخیر سے آنے کا امکان ہے. بہت سے لوگوں کو ملے ہیں ابھی یہاں جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی جاری ہے پولنگ، اور چونکہ ابھی آخری دم تک لوگ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ جو اپنے حامیوں کو، اپنے ووٹرز کو لا کر ووٹ کاسٹ کروا سکیں. تو 11 بجے تک تو پولنگ ہوگی، اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوگا. نتائج بہت تاخیر سے آنے کا امکان ہے. تب تک کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ چناب کلب کے سیکرٹری کے عہدے پر اور 4 ایگزیکٹو نشستوں پر کون کامیاب ہوتا ہے. جی جاری ہے. بہت شکریہ بیورو چیف ظفر ڈوگر صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد میں ترقیاتی اسکیموں پر عائد پابندی شہری میونسپل سروسز سے محروم ہو گئے. شہر کے 65 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 23 خراب نکلے. میونسپل انفراسٹرکچر آفیسر خالد جاوید کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹوٹل 65 واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، جن میں سے 23 واٹر فلٹریشن پلانٹس خراب ہیں، 42 پلانٹس فعال ہیں. میونسپل کارپوریشن پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور لوکل گورنمنٹ پلانٹس کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارے لا منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی مہربانی کی وجہ سے یہ پلانٹ ہم نے یہاں پہ لگایا تھا اور سب سے مہنگا پلانٹ تھا. لیکن اب یہ اس حکومت کا رونا رو رہا ہے اور اس حکومت کے کام دیکھیں کہ اپنے کام جو ہے وہ خیراتی اداروں کے حوالے کر دیے ہیں. خیراتی ادارہ کسی کو جواب دے نہیں ہوتا، وہ تو ان کی مہربانی کہ وہ لوگوں کو، غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا ان کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں. لیکن اس خیراتی ادارے کو دینے کے باوجود آج اس کو تالا بھی یہاں کے مکینوں نے لگایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نشیوں کے ڈیرے تھے. ہمارے جو کچی آبادی کے لوگ میں آپ کو پتہ نشے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے اندر یہاں پہ لوگ نشہ کر رہے تھے اور ایک خاتون نے اپنی جیب سے لا کے اس کو تالا لگا دیا کہ کم از کم اس کی جو مزید جو ہے توڑ پھوڑ نہ ہو.
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से रेलवे कॉलोनी के गरीबाबाद के मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत नहीं कर रही। साफ पानी के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। फिलफौर पानी की फराहमी जरूरी है। ये जो ताला लगा हुआ है इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। पानी का निज़ाम नहीं है, पानी वाटर प्लांट चलता नहीं है, पानी आता नहीं है, पानी हमें बाहर से लेना पड़ता है। सारे इलाका मकीन परेशान है बहुत ज़्यादा। शहरी और बल्दियाती नुमाइंदगान ने मलबा पीटीआई हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं कि हुकूमत को पैसे लगाकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने चाहिए। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि यहाँ पर सियासी मुदाखलत का रास्ता कम किया जाए और यहाँ पर जो अवामी फलाही सहूलियात हैं उन्हें मुहैया की जाएँ ताकि उनके लिए जो बढ़ती हुई मुश्किलात है वो कम हो सकें। कैमरामैन शाजिब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। अब शहर का हुस्न होगा बहाल, बर वक्त होंगे तामीर तरक्की के काम। बल्दिया चिन्योट का अहम बजट इजलास, 41 करोड़ रुपए से जायद बजट की मंजूरी दे दी गई। बल्दियाती इदारों की बहाली के असरात आना शुरू। बल्दिया चिन्योट का बजट अहम इजलास बल्दिया हाल में मुनक्कद हुआ। चेयरमैन बल्दिया माहिर खालिद ने सदारत की, जबकि वाइस चेयरमैन बल्दिया हाजी जाहिद ने कन्वीनियर के प्राइस सर अंजाम दिए। इजलास में बल्दिया चिन्योट के साल 2021 और 2022 के लिए 41 करोड़ रुपए से जायद के बजट को मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसे हाउस ने पास कर लिया। 41 करोड़ का बजट मंजूर किया, जिसमें लेबोरेटरीज हैं, कुछ हमारी मशीनरी के पैसे, मुख्तलिफ मदों में पैसे हैं। 41 करोड़ के राउंड अबाउट हमारा बजट पास हुआ और मुतफिका तौर पर पास किया गया। अल्लाह का शुक्र अदा करने का मकाम है कि आज का ये इजलास हमारे यहाँ न कोई अपोजिशन थी, न कोई हुकूमती बेंचेस थे, सब इकट्ठे थे और तमाम बजट को खुशगवार माहौल में मुत्तफिका तौर पर पास किया गया। इजलास में मौजूद काउंसलर्स का कहना है कि बल्दिया चिन्योट की तनख्वाहों और दीगर मजमे वाजिबात की अदायगी के बाद बचने वाले बजट को तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि बल्दियाती इदारों को दी गई कलील मुद्दत में लोगों के मसाइल हल कर सकें। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। बात के लिए वजीर आला पैकेज पर अमल दरामद का आगाज। फैसलाबाद सरगोदा रोड से मुलहिका इलाकों के मकीनों की सुनी गई। बरसाती पानी और सीवरेज की निकासी के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पैकेज के तहत वासा के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। सरगोदा रोड से मुल्हिका इलाकों के बरसाती पानी और सीवरेज के कई साल पुराने मसाइल हल होने की उम्मीद जाग उठी। लारियडा से लेकर पीटीसीएल एक्सचेंज सरगोदा रोड तक 7000 फुट ट्रंक सीवर लाइन लगाने का काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे से इस्लाम नगर, बोलेदी झुग्गी, चिब्बा, इकबाल स्टेडियम, लारियडा और सरगोदा रोड के इलाके मुस्तफीद होंगे। डायरेक्टर वासा फारूक नजीब का कहना है कि ट्रंक सीवर लाइन पर काम आइंदा 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। एडीबी स्कीम है ट्रंक सीवर फ्रॉम बोलेदी झुग्गी टू लारियडा बस स्टैंड, और ये टोटल लेंथ इसकी है 7000 फीट इसकी लेंथ है। ये 36 इंच डाया ट्रंक सीवर है इसके अंदर, और ये एक एडीबी स्कीम है। इसकी टोटल मालियत है 5 करोड़ 19 लाख रुपया, ये इसकी टोटल मालियत है। वासा हुकाम के मुताबिक मंसूबे के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बकाया फंड्स भी लिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मरीजों की मुश्किलात होंगी कम। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अलाइड डीएचक्यू और जनरल अस्पताल कोला मोहम्मदाबाद में सीनियर रजिस्ट्रार की खाली 25 असामियों पर इंटरव्यू शुरू कर दिए। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की हदायत पर अलाइड डीएचक्यू और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में सीनियर रजिस्ट्रार भर्ती कर रहे हैं। 25 खाली सीटों पर 75 उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे हैं। इसमें गायनी, अमराज चशम, सर्जरी, मेडिसिन समेत दीगर शोबे शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे में इब्तदाई तौर पर सीनियर रजिस्ट्रार, इसके बाद मरहलावार एसोसिएट और प्रोफेसरों की भर्ती करेंगे। क्योंकि डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा होगी तो मरीज भी मुस्तफिद हो सकेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद पटवारी भर्ती करने का फैसला। कमिश्नर फैसलाबाद ने 200 पटवारियों की भर्ती के लिए ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें तलब कर ली। रेवेन्यू के मामलात बेहतर बनाने के लिए टोबा समेत डिवीजन भर में मजीद 200 पटवारी भर्ती किए जाएंगे। टोबा में 68, फैसलाबाद में 49, जंग में 63, जबकि चिन्योट में 20 पटवारी भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। हुकाम के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें 4 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। चंद माह कबल भी पटवारियों की भर्ती की गई थी, जबकि मेरिट पर पूरा न उतरने वालों को मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद खाली सीटों पर भर्ती का फैसला किया गया है। फेस्को में ट्रांसफार्मर बहरान से नया कनेक्शन ख्वाब बन गया। 25 केवी ट्रांसफार्मर्स के 1000 दरख्वास्त गुजार ख्वार होकर रह गए। फेस्को ने डिमांड नोटिस की मद में करोड़ों रुपए वसूल करके चुप साध ली। फेस्को की अदम तवज्जी से ट्यूब कनेक्शंस और छोटे कारोबारी मराकज का बिजली कनेक्शन लगवाना नामुमकिन हो गया। फेस्को को 7 माह से 25 केवी ट्रांसफार्मर्स की कमी का सामना है, जबकि 7 माह गुजरने के बावजूद फेस्को 25 केवी ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का परचेज ऑर्डर भी ना बना सका।
कानून शिकन हो जाएं होशियार, खबरदार। मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट के सफर नहीं कर सकेंगे। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए टोबा इंतजामिया का दफा 144 के नफाज का फैसला। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक हादसात में खौफनाक इजाफा हो रहा है, जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ तो मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। ज्यादातर हादसात मोटरसाइकिल सवारों की गफलत से पेश आ रहे हैं। टोबा इंतजामिया ने दफा 144 के नफाज का फैसला किया है। अब कोई भी मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट के सड़क पर नहीं आ सकेगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस को यही डायरेक्शंस दी हैं कि एक तो मोटरसाइकिल्स इंपाउंड करें और कोशिश करें कि उनकी एक तो वो आए ना सड़क के ऊपर, अगर वो आएँ तो कम से कम उन्होंने हेलमेट पहना हो, क्योंकि अगर हेलमेट पहना हो तो जो इंसानी जान है वो कम से कम बच जाती है, उसके बड़े चांसेस हो जाते हैं। तो ये हम भी एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर रहे हैं कि जो मेन रोड्स हैं उनके ऊपर विदाउट हेलमेट जो है वो लोग मोटरसाइकिल लेकर ना आएँ। इंतजामिया के मुताबिक गोजरा और झंग रोड पर हादसात की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिस पर महकमा हाईवे को सड़कों पर बोर्ड्स नस्ब करने और स्पीड ब्रेकर लगाने की हिदायत की गई है। शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। हेलमेट का बहुत फायदा, सेफ्टी है, जितना मर्जी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट तो बचत हो जाती है। दाना खासा बंदा गिरदा वो सिर चोट नहीं होती। DHQ अस्पताल के बाहर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर कैट आइज भी लगाई जाएंगी। किसी भी हादसा की सूरत में हेलमेट का इस्तेमाल मोटरसाइकिल सवारों को बड़े नुकसान से महफूज रख सकता है। इंतजामिया ने शहरियों से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबादियों के लिए तिब्बी सहूलियात बारी अच्छी खबर। इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का एहसन इकदाम। पहली मरतबा रेस्क्यू ऐप मुतारिफ करवा दी। अब हादसात या इमरजेंसी की सूरत में ऐप से मदद ली जाएगी। रेस्क्यू 112 ने 17 साल बाद ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवा दी है। ये ऐप उबर और क्रीम की तर्ज की है। फैसलाबाद के शहरी के साथ कहीं ना किसी भी जगह पर अगर हादसा रूनुमा हो सकता है तो वो ऐप के थ्रू रेस्क्यू 112 को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि किस तरह रेस्क्यू 112 को अप्रोच किया जा सकता है। तो ये ऐप है, अभी रोड एक्सीडेंट के थ्रू हम कॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये भी कॉल जाएगी उनको थ्रू, किस तरह क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। रेस्क्यू बिल्डिंग ऑफिस में ये रोड एक्सीडेंट की मैंने कॉल की है थ्रू ऐप। जी, तो काइंडली इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा। ठीक है सर। कॉल्स के बाद ऐप के जरिए रेस्क्यू 1122 का रिस्पॉन्स जानने और कॉल्स करंदा का डाटा और लोकेशन जानने के लिए रेस्क्यू कंट्रोल रूम पहुंचे। मेरी कॉल आ चुकी है और हम इस वक्त रेस्क्यू का कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ जो मैंने थ्रू ऐप के जरिए किया था वो मेरा डाटा इनके आ सका। ये दिखाइएगा मेरा डाटा कहाँ पे है जी इस वक्त, जो मैंने अभी एमरजेंसी कॉल की थी। ये देख सकते हैं इमरान असलम ये नंबर है और अभी एमरजेंसी ये मैंने कॉल की है 1253 पे, तो इनके पास डाटा आ चुका है। ये ऐप के थ्रू जो है वो तमाम तर जो है रेस्क्यू 112 को अप्रोच कर सकेंगे। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम के इंचार्ज उमर का कहना है कि रेस्क्यू ऐप क्रीम और उबर की तर्ज पर बनाई गई है। शहरी ऐप के जरिए हादसात या इमरजेंसी की सूरत में ऐप से मदद तलब कर सकेंगे। रेस्क्यू ऐप की बदौलत बर वक्त इमदाद यकीनी बनाई जाएगी। मुतासरा अफराद ऐप पर एम्बुलेंस की लोकेशन भी देख सकेंगे। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि रेस्क्यू 1122 ने ये नया एक इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह उबर और करीम की तरह लोग अपनी टैक्सी सर्विस के लिए हायर करते हैं इस एप्लीकेशन को, इस तरह ही रेस्क्यू 1122 ने एक ऐप मुतारफ़ कराई है रेस्क्यू कंज्यूमर के नाम से। वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, फ्री ऐप है। अगर कोई भी जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो अगर इस ऐप के थ्रू हमें कॉल करेगा तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, जिससे उसके तक एम्बुलेंस या कोई भी एमरजेंसी व्हीकल पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में नई अपडेट आ रही है, जिसके तहत वो जो कॉलर होगा वो हमारी जो सर्विस ने डिमांड की होगी वो उसको उसके मोबाइल पे नज़र आ रही होगी कि वो कहाँ से आ रही है और उससे कितने फासले पे है। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसके नियरेस्ट एम्बुलेंस जो होगी हम उसको उसकी लोकेशन पर भेज देंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में बहुत वाजिया फ़र्क आएगा। तो लोगों से यही इल्तमास है कि वो इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आगाह करें, दोस्तों को भी आगाह करें। फ्री ऐप है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसके थ्रू ही जब भी रेस्क्यू की हेल्पलाइन पे कॉल करें तो उस ऐप के थ्रू करें, ताकि हमारे पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए और जिसको हमें ढूंढने में ज़्यादा थोड़ा सा भी वक्त ज़ाया ना करना पड़े और हम जल्द अज जल्द उस तक पहुँच सकें। एमरजेंसी अपडेट्स भी रेस्क्यू ऐप पर दस्तयाब होंगी। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ऐप मुतारफ़ करवा दी है।
जो यकीनन शहरियों के लिए मुस्तफीद साबित होगी। कैमरामैन शोएब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। लियाकत अली चट्ठा की फैसलाबाद आमद। लियाकत अली चट्ठा ने वर्कर्स वेलफेयर स्कूल खुड़ियांवाला का दौरा किया। क्लासेस में बच्चों का वर्बल टेस्ट लिया गया। लेबर पंजाब लियाकत चट्ठा ने फैसलाबाद के इलाका खुड़ियांवाला में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल का दौरा किया। इनका कहना है कि हमारे वर्कर वेलफेयर स्कूलों में मजदूरों के बच्चों की तालीम के अखराजात उठा रहे हैं और वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स में मयारी तालीम भी दी जा रही है। हमारे लेबर डिपार्टमेंट के पंजाब में 70 के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल हैं। उनमें से एक स्कूल ये भी खुड़ियांवाला है। तो मैंने आज इसकी इंस्पेक्शन की है, देखा है और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स नज़र आई हैं जो मैंने प्रिंसिपल को कहा है कि इनको बेहतर करें। इन स्कूलों को बेहतर करने के लिए हमने एक नई पॉलिसी स्कूल काउंसिल्स वाली बनाई है। यहाँ पे भी आज ये जो मीटिंग थी ये स्कूल काउंसिल की हो रही थी। ये पूरे पंजाब में हमने स्कूल काउंसिल्स बना दी हैं। इनमें प्रिंसिपल का और डायरेक्टर लेबर का जॉइंट अकाउंट होगा। इसमें हम जो मुकामी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको भी हमने कहा है कि वो इन अपने स्कूलों में और सोशल सिक्योरिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बेहतरी के लिए कोशिश करें। सेक्रेटरी लेबर पंजाब ने बच्चों के टेस्ट के बाद तालीम के मेयार को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और प्रिंसिपल को हदायत दी कि जो भी कमी है इसे दूर किया जाए। इन्होंने कहा कि स्कूल में सहूलियात की फराहमी के लिए सनतकारों से भी मदद ली जा रही है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अपने प्रॉफिट में से 5% प्रॉफिट जो है वो वर्कर्स के ऊपर खर्च करना होता है। उस 5% का बेहतरीन मसरफ ये स्कूल और ये हॉस्पिटल हैं जहाँ लेबरर्स के वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पे आए थे उन्होंने भी यहाँ कमिटमेंट की कि अप्रोच रोड, पीने का पानी और बाकी फर्नीचर और दूसरे लवाजमात, इसकी लैब्स की अपग्रेडेशन, तो ये इंशाल्लाह इन चीज़ों को सबको इम्प्रूव करेंगे। सेक्रेटरी लेबर ने दौरे के बाद स्कूल यूनियन के मेंबरान और स्टाफ से भी मुलाकात की। कैमरामैन अकील आकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग गजाली पायलट स्कूल में रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम अदबी मुकाबला। तलबा ने तलावत, नात और बेहतरीन तकारीर करके हाजिरीन से दाद वसूल की। जंग के गजाली पायलट स्कूल में रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम अदबी मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में सैयद फिरोज गिलानी, सैयद बासित गिलानी, मियाँ वासिफ मजीद, सैयद हसन गिलानी, आफ्ताब ईसा, मोहम्मद असलम मलिक ने शिरकत की। अदबी मुकाबले में तलबा ने खूबसूरत तिलावत कलाम रहमान, नात और बेहतरीन तकारीर पेश की। अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। Today I have blessed with this opportunity to deliver my speech on importance of water. Someone said, if you save water, water will save you. Respected President, water is important to nearly every part of your body. दाते हस्ती का मदावा है तेरा जिक्र जमील, दाते हस्ती का मदावा है तेरा जिक्र जमील, और जख्म फिर तेरे नाम से बढ़ जाते हैं। जब तेरा नाम चलता है मेरे होठों पर, जब तेरा नाम चलता है मेरे होठों पर, जैसे तहत नजर फूल बिखर जाते हैं। तो सारे आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। तकरीरी मुकाबले में मियाँ इमरान साजिद, ताहिर फारूक साजिद, मियाँ मुदस्सिर साजिद, मियाँ खालिद महमूद और मोहम्मद उस्मान ताहिर समेत दीगर भी शरीक हुए। बच्चों की हाज़रीन ने खूब दाद दी। बच्चियों ने आज यहाँ परफॉर्मेंस दी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके उन बच्चियों को, खास तौर पे उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा इकराम को। मुकाबला जात के खिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में दुल्हनों को सजाने और संवारने के मुकाबले हुए जिसमें शहर भर से खवातीन और ब्यूटिशियंस ने शिरकत की।
فیصل آباد کنار روڈ پہ بیوٹیشن کے دلہن سجانے کے مقابلے ہوئے، جس میں شہر بھر سے خواتین اور بیوٹیشن نے شرکت کی۔ مقابلوں میں شریک مشہور ایکٹر فضا علی کا کہنا تھا کہ خواتین کا خوبصورت رہنا انتہائی ضروری ہے۔ لڑکیاں تو سج میں سنورنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ مقابلوں میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ایسے کلاسز سے بہتر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حکومت نے میک اپ کو مہنگا کر دیا، مگر کیا کریں، خوبصورت رہنے کے لیے میک اپ بھی ضروری ہے۔ مہنگا ہو گیا ہے لیکن اس کی کوالٹی بھی تو اچھی ہے۔ اب دیکھیں یہ لک آپ کو سستے میں مل سکتا ہے کہیں۔ میک اپ تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، ہر چیز پہ ٹیکس لگ گئے ہیں، خاص کر کے کاسمیٹک پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے۔ مہنگا ہی ہے میک اپ، ظاہری بات ہے، انہیں چاہیے کہ میک اپ تھوڑا سستا کر دیں اور تاکہ ہر بندہ ایزیلی افورڈ کر سکے۔ خواتین کی جانب سے ایک دن کی کلاس کروانے پر انتظامیہ کو خوب سراہا گیا۔ کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا